لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. نا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا. میرے رب کی قسم، اس کو 1000 سال منہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو، یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک تمہارا ارادہ نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی. جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا. جے ہند دوستو، مولانا اور حور آج ہمارا ٹاپک ہے. یہ حور کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے، یہ مولاناؤں نے کس طرح سے لوگوں میں ایسا بھرمت کیا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیں حوریں ملیں گی. ان کو لگتا ہے کہ زندگی اس دھرتی پر نہیں، اس دھرتی سے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جو ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے اس دھرتی پر بندش ہے، جن ساری چیزوں کی، وہ جنت میں جا کے ان کو آسانی سے ملیں گی. جیسے کہ شراب، شباب، کباب، ساری چیزیں آسانی سے ملیں گی، اور اس پہ کوئی منائی نہیں. یہ ان کے دھرم کے حساب سے ہوگی. یہ مولاناؤں نے جو کنسیپٹ دیا ہے، اس کے تحت بھرمت ہو کے بہت سے لوگ اپنی باڈی پر باندھ کر بھی مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جنت میں پہنچ جائیں گے. ایسا لوگوں کا دماغ بھرشٹ کیا ہے، برین واش کیا ہے کہ ان کو اس کے آگے سے کچھ بھی سوچتا نہیں ہے. جب ان سے کوئی ترک وترک کرتا ہے سامنے سے، تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا سولڈ اس کو کیا جواب دیا جائے. جیسے کہ آرجو کاجمی نے ان سے ترک کیا کہ اگر بندوں کو مرنے کے بعد 72 حوریں ملتی ہیں تو پرشوں کو کیا ملے گا. مولانا کے پاس اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا. آئیے دیکھتے ہیں، یہ مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا دوستو. نہیں آ رہا، لیکن ایک دم ایسے پردے میں سرسراہٹ ہوگی. پھر اسے پتہ چلے گا تو آگے کوئی پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے 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 ایسے. جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے. 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی. ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی. ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا. میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے. 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال آنکھ نہیں چھپک سکے گا. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے. دوستو، یہ مولانا یہ پاکستان سے ہیں، یہ پاکستان میں بہت فیمس ہیں. یہ حور کے بارے میں جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں، اب دیکھیے کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ 100 کپڑے کا لباس اس نے پہنے ہوں گے، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، پر اس کا بدن صاف دکھائی دے گا. ان کی باتوں میں آپ کو سیکس نظر نہیں آتا؟ یہ کس طرح کی اشلیل باتیں کر رہے ہیں. باتوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مہیلا کا، حور کا بدن اس کے 100 جوڑے کپڑے پہننے کے باوجود بھی نہیں دکھائی دے گا. ایون کئی مولانا تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی ہڈی کے اندر کے بھی جو کہتے ہیں کہ ہوگا وہ بھی اس کو دکھائی دے گا. تو اتنا پاردرشی اس کا جسم ہوگا جس کو کپڑے بھی نہیں ڈھانک سکیں گے. اور جو جنتی جائیں گے وہاں پہ پہنچیں گے، وہ 40 سال بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہی رہیں گے. آپ سوچئے اس کی باتوں کو کہاں سے اس کو آپ لنک کرنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی چلو مان بھی لیا
तुम उसको उकसा रहे हो, वो अंदर जाता है किसी कमरे में किसी लेडीज के पास, वो 40 साल बैठ के उसको देखता रहेगा। मौलाना साहब कुछ तो ऐसी बात करो जो रिलेवेंट हो। किस तरह की बातें कर रहे हो आप बहुत फेमस हो, बहुत सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है, हम भी आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं, पर आप जो बात कर रहे हो उसका तर्क तो देखिए क्या दे रहे हो आप। 100 कपड़ों के अंदर से भी लिबास दिखेगा। अरे ऐसी महिला के पास कौन जाना पसंद करेगा जो 100 जोड़े कपड़े पहन के बैठी होगी, और जिसका मतलब के लिबास के अंदर से उसका बदन दिखाई देगा। मौलाना जी कुछ तो सोच लीजिए थोड़ा सा। कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं आप लोग हैं। देखिए आगे सुनते हैं दोस्तों हम लोग। जन्नत में जन्नतियों की खिदमत के लिए जो अल्लाह ने बच्चे रखे हैं ना, बहुत खूबसूरत। कुरान कह रहा है जैसे खूबसूरत मोती की तस्बीह टूटती है ना और उसके दाने ऐसे फैल जाते हैं, खूबसूरत मोती, ऐसे वो बच्चे जन्नत में फैले हुए होंगे खूबसूरत मोतियों की तरह, जो इनकी खिदमत के लिए हैं। ये शराब के गिलासों के साथ, शराब के आबखोरों के साथ इन पर गश्त करेंगे, बड़ी आंखों वाली। अल्लाह ने इसका भी इंतज़ाम किया है कि बड़ी बड़ी आंखों वाली सफ़ेद रंगत वाली हूरें, वो भी अल्लाह ने जन्नतियों के लिए तैयार की हैं। क्या दर्जे की शराब है? रहीक, रहीक युस्क़ौन मिर रहीक। ये जन्नतुल फिरदौस में खालिस पेश की जाएगी और नीचे वाली जन्नतों में थोड़ा चंद कतरे डाल के दिए जाएंगे। फिर फिरदौस वालों को खालिस पेश है, खालिस। और नीचे वाली जन्नत का मंजर है यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती खुद सुराही उठाता है और डालता है और पीता है। इसको पिलाने वाले भी नौकर होंगे, गुलाम होंगे, लेकिन अल्लाह 3 दर्जों का फ़र्क बताना चाहता है, लिहाजा ताबीर में फ़र्क ले आए। नौकर हर जगह है। सबसे अदना दर्जे के जन्नती के 80,000 नौकर होंगे। 80,000, 80,000, 100। ये मौलाना तो एक कदम आगे निकल गए। ये जो इनके मन में ख्यालात थे कि चाइल्ड अब्यूज के बारे में जो सोचते रहते थे, सुंदर सुंदर बच्चे इनको यहाँ पर शायद ये पकड़े गए होंगे, तो इसलिए चाहते हैं कि जन्नत में भी इनको इसी तरह से मिलेगा कि सुंदर सुंदर बच्चे मिलेंगे जो इनकी खिदमत करते हुए होंगे और जिनका ये इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की इनकी मानसिकता है और क्या कहने को मौलाना है। देखिए क्या कह रहे हैं इस सवाल में, किस तरह की आपको बच्चे मिलेंगे और जो किस तरह के सुंदर होंगे और क्या आपके साथ करेंगे वो लोग है। इसको इसके लिए कारपेटिंग होगी कितनी, 40 साल कारपेट पे चलेगा, कारपेट खत्म नहीं होगा। इसके लिए तख्त बिछाया जाएगा। 80,000 नौकर, 80,000 जाम और 80,000 खाने इसको पेश करेंगे। ये हर खाना खा जाएगा, हर जाम पी जाएगा, न पीने की लज्जत में कमी, न खाने की लज्जत में कमी, न पेशाब, न पखाना, न बदहजमी, कुछ भी नहीं। एक डकार के साथ सर शय हजम। फिर इसके खुदाम कहेंगे अब आप अपनी बेगम साहब से मिल लें। वो कहेगा बेगम तो नजर नहीं आ रही। वो एकदम गायब हो जाएंगे, नौकर गायब हो जाएंगे। तो उसको सामने कुछ नजर। जन्नत की लड़की, अंगूठे से यहाँ तक ज़ाफ़रान, घुटने से सीने तक मुश्क, सीने से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर, 4 खुशबुओं से मिला के बनाया है। और उसका कद है 130 फुट, 130 फुट। सर के बाल चोटी से आते हैं आबशार की तरह और पाँव की एड़ियों का बोसा लेते हैं। 130 फुट लंबे बाल और उसमें मोती हीरे चढ़े हुए, और उसको उठाने के लिए अलग खादिमात, अलग खादिमात। यूं जब सर हिलाती है तो बाल जब यूं घूमते हैं तो पूरी जन्नत में बिजलियां जगमग 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 करने लगती हैं। और एक मुस्कुराहट पर दांतों से नूर निकलता है, सारी जन्नत को रोशन कर देता है। एक कदम उठाती है खामिन के लिए, 1 लाख नाजो अंदाज अपने खामिन को दिखलाती है। 130 फुट जन्नत की लड़की। अल्लाह जन्नत में वापसी करेगा तो दोबारा 130 फुट आदम अलैहिस्सलाम का कद देगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवान खूबसूरती देगा, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी देगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की शीरीन ज़बान देगा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सागर दिल देगा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देगा। चेहरे पे दाढ़ी गायब हो जाएगी, दाढ़ी नहीं होगी। सर के बाल, पाँवों के बाल, ये हल्के हल्के मूँछों के बाल, सारे जिस्म पर बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल
नीम घुंघराले यहाँ तक शानों तक, और पूरा जिस्म सफ़ेद चांदी की तरह चमकता हुआ, चेहरे से दाढ़ी गायब, जिस्म के बाल गायब, सर के, भवों के और पलकों के और ये मूछों के। और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं जानती हूँ। अब तुम सोचो कि जिंदा है तो औरत, मरता है तो ठरकबाजी, हर चीज में ठरकबाजी है। मुझे लगता है किसी दिन मुफ्ती तारिक मसूद अगर आ गया ना भारत, पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। तो ये सब्जी खाने वाले मर्द तो छोड़ दो सनातनी, ये सब्जी खाने वाली मुसलमान नाजिया ही काफी होगी। इतना मारूंगी कुर्ता और पजामा खोल करके कि 5 दिन चेयर पे बैठ नहीं पाएगा ये मुफ्ती तारिक मसूद। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये अपने आप को इस्लामिक प्रीचर कहता है। इस्लाम में कैमरा फेस करना, इस्लाम में फोटो खिंचवाना, इस्लाम में अपने इस्लामिक प्रीच के समय में किसी और दुनियादारी की बातें करना सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। ये क्यों करता है बात, ये क्यों करता है एक्टर एक्ट्रेस की बात? 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? देखो भारत के मुसलमान मौलाना का और तारिक मसूद का साठगांठ कितना जबरदस्त है। मौलाना अरशद मदनी जब ये कहा था कि हमारे मुसलमान लड़कियों की अगर शादी 12 साल की उम्र में ना हो जाए तो वो बकरियों से सेक्स करवाती है, इसकी पुष्टिकरण कौन करता है? पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती तारिक मसूद। सवाल ही बेहुदा है, औरतों को क्या मिलेगा? जब ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर नहीं है। कितने दोगले हैं ना ये लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस, कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। एक एनिमल पॉर्न मूवी देखने वाला भारत का मौलाना साजिद रशीदी, उसके समर्थन में कौन आता है? मुफ्ती तारिक मसूद आता है। मतलब एक वो हम ऐड देखते थे ना, जब मिल बैठेंगे 2 यार, हाँ जी। तो अब मिल बैठे हैं 2 ठरकबाज, एक पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद और एक भारत का मौलाना साजिद रशीदी। तो मिल बैठ गए हैं 2 ठरकबाज, और किसको टारगेट कर रहे हैं? मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलती हूँ इनका पर्दा, इनका हिजाब चेहरे से उठाती हूँ कि ये कितने ठरकी हैं, तो भाई मुसलमान मर्द मुझे गालियां देते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सच पर बात कर रही हूँ। लोगों के मन में एक भ्रम डाला गया है मौलानाओं की तरफ से, और उसमें हवाला ये अपने कुरान का और अपने धार्मिक ग्रंथों का देते हैं, जबकि जग जाहिर है कि मरने के बाद नहीं दुनिया, इस दुनिया में रहकर ही इंसान जीता है, जो कर्म वो करता है वो यहीं पर भोगता है। एक मन को बहलावा देने के लिए इन्होंने कंसेप्ट गढ़ दिया, जिसको बेचारे कुछ ना समझ से लोग सच मान लेते हैं कि मौलाना बात कह रहा तो सच्ची होगी। तो दोस्तों जी, आप अपने विवेक से काम लीजिए। कोई भी धर्म किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं सिखाता, लेकिन मौलानाओं के चक्कर में आकर आप इस तरह की कोई हरकत ना कीजिए ताकि आपका जीवन खराब हो, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप अपने विवेक से काम लीजिए। मौलाना ये सारा कुछ बता के बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, और आप लोग उसी गुर्बत में जी रहे हैं। थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। आप मेहनत कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।